إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین جمعہ، اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم مسلمانوں پر بہت بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی بے بہا نعمت سے بہراور کرنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے قانون الہی میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنایا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے الفت و محبت کریں، ایک دوسرے سے ہمدردی، خیر خواہی، غم گساری کے جذبات کا تبادلہ کریں اور اپنی بھلائی اور بہتری کے ساتھ ہر مسلمان کی بھلائی اور بہتری کے لیے کام کریں۔ اگرچہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو رشتہ ہے وہ نسبی ہے، یعنی خاندان کی وجہ سے نہیں، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اخوت و بھائی چارگی کا رشتہ ہے، لیکن یہ رشتہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا قوی ہونا چاہیے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بالکل اپنے سگے بھائی کی طرح معاملہ کرے، اس کی ہر پریشانی کو، ہر دکھ کو، ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، اس کے جان و مال اور عزت کی حفاظت بالکل اسی طرح کرے جس طرح اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے اوپر ظلم کو بالکل اسی طرح محسوس کرے جس طرح اپنے اوپر ظلم و ستم کو محسوس کرتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے اور مسلمان اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال میں مگن ہے، اسے صرف اپنی مصلحت اور اپنی ہی بھلائی اور خیر خواہی عزیز ہے، تو میرے بھائیوں، ہمارے ایمان میں یہ نقص ہے۔ مسلمانوں کے آپسی تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم میں اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ کیا نوعیت ہونی چاہیے، کیا کیفیت ہونی چاہیے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ساتھ؟ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، سب ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں، ہمدرد ہیں، غمگسار ہیں، اور اپنی اسی رشتہ داری کی بنا پر، اپنی اسی ہمدردی کی بنا پر، اپنی اسی تعلق کی بنا پر ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اور نماز پنجگانہ جو اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے،
सब मिलकर अदा करते हैं, और जो मालदार लोग हैं वो ज़कात दे करके अपने गरीब और फकीर भाइयों को अपनी खुशियों में शरीक करते हैं, और सबके सब मिलके इनकी जिंदगी का बाहमी शिआर यह है कि वो सबके सब मिलके अल्लाह और उसके रसूल की अताअत व फर्मा बरदारी करते हैं, यानी अल्लाह ही के नाम से इकट्ठा होते हैं और उसी के हुक्म से जुदा होते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार होकर के आपकी सुन्नत तैयबा पर अमल करते हैं। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी का ये शिआर बनाया है और अपनी बाहमी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल इज्जत की सायत के साँचे में ढाला है, वही अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक हैं। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जो अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक हैं। अल्लाह बेशक हिकमत वाला है और गालिब भी है। इसी चीज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस मुबारका में भी बयान किया है कि एक मुसलमान का रिश्ता दूसरे मुसलमान के साथ क्या होना चाहिए, जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने अपने सहीहैन में रिवायत किया है। बहुत मशहूर हदीस है, आप सब लोग इससे वाकिफ हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल-मुमिनु लिल-मुमिन कल-बुनियान यशुद्दु बादुहु बादा, कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए एक इमारत की तरह है कि उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूती पहुंचाता है। हजरात, आप जानते हैं कि अगर ईंटें बिखरी हुई हों तो उनकी कोई कीमत नहीं होती, कोई उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता, लेकिन जब इन्हीं ईंटों को सलीके के साथ पिरो दिया जाए, किसी दीवार में लगा दिया जाए, सलीके के साथ चुन दिया जाए, तो एक मजबूत इमारत खड़ी हो जाती है, और इस इमारत का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूती पहुंचाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मोतियां बिखरी हुई होती हैं तो उनकी भी कोई हैसियत नहीं होती, उनकी भी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब उनको एक लड़ी में पिरो दिया जाता है तो एक खूबसूरत हार बन जाती है, जो जाजिब नजर भी होती है और दिलकश भी होती। हजरात, ये इस्लामी भाईचारा और आपसी मोहब्बत, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुसलमानों पर बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद इस नेमत को याद दिलाते हुए कहा कि वातस्मु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, कि सब मिलकर के अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो, एक हो जाओ, फिरकों में ना बटो, गिरोहों में तक़सीम ना हो, और ये याद कर लो कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान, के तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे से जुदा थे, एक दूसरे के मुखालिफ थे, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी हिकमत से तुमको नवाजा और ऐसी नेमत दी जिससे की वजह से तुम सबके सब एक हो गए हो। इसी चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब फर्क करके फरमाया, वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्ता मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ मा अल्लफ़्ता बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्न अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। औस और खज़रज के बारे में अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी को मुखातब करके फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला ने उनके दिलों में उल्फत और मोहब्बत डाल दी। ए नबी, अगर आप जमीन का सारा खजाना खर्च कर देते कि उनमें आपस में मिलाप हो जाए तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके दिलों को जोड़ दिया, इनमें आपस में उल्फत पैदा कर दी। तो मुसलमानों, ये भाईचारा, ये अखवत और मोहब्बत, ये उल्फत, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हमारा हाल ये है कि हम इस नेमत से बहरावर और मुस्तफीद होने के बजाय हम इसको पसे पुष्ट डाल रहे हैं। हजरात, अगर मुसलमानों के अंदर आज भी उल्फत और मोहब्बत हो जाए, उनके अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम हो जाए, तो ना सिर्फ वो मजबूत और मुस्तहकम होंगे, बल्कि दुनिया की निगाहों में भी उनकी कदर और कीमत बढ़ जाएगी। आप जानते हैं कि इस वक्त मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में होने के बावजूद मुल्की और आलमी पैमाने पर बेहैसियत और बेवकत हो गए हैं। यहां तक कि खून मुस्लिम तमाम इंसानों में सबसे अर्जा खून हो गया है। देख लीजिए, दुनिया में जहां कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उनका हर से हयात तंग किया जा रहा है, उनको इस जिंदगी में आराम और सुकून के साथ जीने नहीं दिया जा रहा है,
तो इसकी वजह यह नहीं है कि मुसलमानों ने किसी पर जुल्म किया है, किसी की जमीन और मुल्क पे नाजायज कब्जा किया है, किसी को सताया है, किसी के साथ बेइंसाफी की है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उन पर जुल्म और सितम का पहाड़ इसलिए तोड़ा जा रहा है कि वो मुसलमान हैं। उनके हक में कोई आवाज उठाने वाला नहीं। हजरात, एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए। अभी रूस में चंद दिनों पहले यूक्रेन के एक हॉस्पिटल पे बमबारी कर दी, तो वो लोग जिनकी जुबानें गुम हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि वो इंसान नहीं है, उन्होंने फौरन मजलिस आम में सिक्योरिटी काउंसिल में इज्तिमा मुनक़िद कर दिया कि क्यों रूस ने ऐसा किया। लेकिन इसराइल हर रोज अस्पतालों पे बमबारी कर रहा है, मदरसों पे बमबारी कर रहा है, मासूमों को कत्ल कर रहा है, बच्चों को मार रहा है, लेकिन कोई भी इनके हक में आवाज उठाने वाला नहीं। इसलिए कि मुसलमानों ने जब खुद अपने आप ही को नहीं पहचाना है, खुद वो आपसी इंतशार और इख्तिलाफ के शिकार हैं, तो जाहिर बात है कि उनके हक में आवाज उठाने वाला कोई दूसरा क्यों होगा। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। हम जब तक अपने हालात को नहीं बदलेंगे और अपने हालात को बदलने के लिए असबाब नहीं अख्तियार करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे हालात को नहीं बदलेगा। हजरात, अगर मुसलमान आज भी ईमान और यकीन वाला हो जाए, अगर आज भी उनके अंदर इस्लाम पूरी तरीके से वो अपनी जिंदगी में नाफिज कर लें, अमली तौर पर वो मुसलमान हो जाएं, इस्लाम के सच्चे शहदाई बन जाएं और ये जान लें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अहकामात और नवाही उनके ऊपर नाजिल किए हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उनसे मुतालबा है, अगर वो हकीकी मानों से अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को, उनके अवामिर और नवाही को अपनी जिंदगी में नाफिज कर लें, तो आज भी दुनिया में बहुत कुछ तब्दील हो सकता है। और मुसलमान न सिर्फ ये कि अपनी दिफा करेंगे, बल्कि वो लोग जिनके ऊपर दुनिया में जुल्म किया जा रहा है, जिनको जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा है, उनकी तरफ से भी दिफा में खड़े हो जाएंगे। और ज़ालिका अलल्लाह बेअज़ीज़, और ये जान लीजिए कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस हमें इक़दाम करने की जरूरत है, तौफीक अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे मुसलमानों के दरमियान ये इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम हो, इसके लिए एक नुस्खे कीमिया बताया है। सहाबी जलील हजरत अब्दुल्लाह बिन सल्लाम बयान करते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, तो मैं भी आपसे मिलने के लिए गया, लेकिन आपकी जुबान मुबारक से सबसे पहले जो कलमात हमने सुने वो ये थे, अय्युहन्नास अफ्शुस सलाम वातिमुत ताम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नता बिसलाम। कि लोगों आपस में सलाम को फैलाओ, एक दूसरे से खूब सलाम करो, जब भी मिलो सलाम करो। आज हमारा ये हाल है कि हमारे यहाँ सलाम इस्लाम नहीं, सलाम इरफान बन गया है। यानी हम हर एक सामने वाले को देख करके सलाम नहीं करते, चाहे वो शक्ल से मुसलमान ही दिखे, बल्कि हम जिसको पहचानते हैं उससे सलाम करते हैं। तो ये मुसलमानों का शेवा नहीं है कि जिसको पहचानते हो उससे सलाम करो, जो भी आपको मुसलमान दिख रहा हो उससे सलाम कीजिए। सलाम इरफान की जरूरत नहीं, बल्कि सलाम इस्लाम की जरूरत है। वातिमुत ताम, एक दूसरे को खाना खिलाओ, एक दूसरे को हदिया दो, एक दूसरे को दावतों पे बुलाओ, इससे आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। वसिलुल अरहाम, और रिश्तेदारियों को जोड़ो। आज रिश्तेदारियों के बजाय दोस्तों को जोड़ा जा रहा है, रिश्तेदारों से ज्यादा साथियों को हुकूक और मराआत हासिल होते हैं। बहुत ही ताज्जुब की बात है कि जिस चीज को अल्लाह और उसके रसूल ने तलब किया है, हम उसको भूल करके अपनी तरफ से गढ़े हुए निजाम को अपनी जिंदगी में नाफिज कर रहे हैं। वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और रात को उस वक्त तुम इबादत करो, अल्लाह के रब्बुल इज्जत के सामने खड़े होकर के सजदे में जाकर के रुकू की हालत में गिड़गिड़ाओ, जब दूसरे लोग सो रहे हों। तदखुलुल जन्नता बिसलाम, तो अल्लाह की जन्नत में तुम सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। हजरात, इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया है कि मुसलमानों के दरमियान आपस में
मोहब्बत कैसे कायम हो सकती है? अगर इन चीजों को हमने अपनाया तो हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत कायम कर सकते हैं, घुल मिलकर रह सकते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने आखिर में ये भी बताया कि ये जो मोहब्बत तुम्हारे दरमियान कायम होगी, इस पर जब तुम तहज्जुद की नमाज पढ़ो तो नमाज के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने इस अमल की ताईद हासिल करो, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताईद तुम्हारे इस मिलाप में, तुम्हारी इस उल्फत में, तुम्हारी इस मोहब्बत में, तुम्हारे इस भाईचारगी में मिल जाए और तुम इस पर बाकी रहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर मोहब्बत का एक तरीका बताया है तो यह मोहब्बत ता देर कैसे कायम रह सकती है, उसके लिए भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई की है। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना माहु फज़लु ज़हरिन फलयउद बिही अला मन ला ज़हरा लहू व मन काना माहु फज़लु ज़ादिन फलयउद बिही अला मन ला ज़ादा लहू। कि जिस शख्स के पास इजाफी सवारी हो उसे चाहिए कि वो दूसरे को दे दे जिसके पास सवारी नहीं है, और जिस शख्स के पास इजाफी खाने की चीज हो वो उसको दे दे जिसके पास खाना नहीं है। हदीस के रावी हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी और खाने पीने की चीजों के साथ इतनी चीजों का जिक्र किया कि हम लोगों ने समझा कि किसी भी जरूरत से ज्यादा चीज में हमारा हक ही नहीं है। हजरात, ये उस वक्त का मामला है जब मुसलमान आपस में एक दूसरे के मददगार थे, जब मुसलमान एक दूसरे पर जान छिड़कने के लिए तैयार थे। उन्हें दूसरे की जरूरत और हाजत के वक्त अपनी हाजत और अपनी जरूरत दिखाई नहीं देती थी। अगर आज के दौर को हम देख लें तो बहुत ही ज्यादा लापरवाही पाई जा रही है। आज हम सिर्फ अपनी जात और अपने अहलो अयाल के लिए सब कुछ मुहैया करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ये आम मुशाहिदे में आता है कि बहुत सारी चीजें सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, खराब हो जाती हैं, लेकिन किसी दूसरे तक, किसी गरीब तक, किसी पड़ोसी तक, किसी रिश्तेदार तक नहीं पहुंचाई जाती हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि ये तो हमारा हक है, हम जो चाहे करें, लेकिन नहीं, इस पे बहुत बड़ी वईद है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाते हुए सुना है, कम मिन जारिन मुतअल्लिक़िन बिजारिही यौमल क़ियामा यक़ूल या रब्बी हाज़ा अग़लक़ बाबहु दूनी व मना मारूफ़हु। कि कितने ऐसे पड़ोसी हैं जो क़यामत के दिन अपने पड़ोसियों से चिमटे हुए होंगे, उनके दामन को पकड़े हुए होंगे और कहेंगे, है मेरे रब, ये वो शख्स है जिसको तूने मालो दौलत से नवाजा था, जिसके लिए तुमने अपनी नेमतें फराहम की थी, दुनिया में इसको ऐसी ऐसी सहूलियात दी थी जो हमारे पास मैसर नहीं थी, लेकिन ये शख्स जब भी मैं इसके दरवाजे पर गया तो इसने अपना दरवाजा बंद कर लिया और अपनी नेकी को और उस नेमत को जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको अता किया था वो हम तक नहीं पहुंचने दिया। तो हजरात, ऐसा नहीं है कि अगर आपने सोचा कि ये हमारा हक है और हम चाहे दें तो ना दे तो दे और नहीं दे तो नहीं दे, नहीं, इस पे बहुत बड़ी वाइद है। क़यामत के दिन ये लोग आपके दामन को पकड़ेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज मुसलमान गैर कौमों की तरह मफाद परस्त और खुदगर्ज बन गया है। उसे सिर्फ अपनी मसलहत अजीज है, जहां उसकी मसलहत रहती है वहां वो काम करता है, वहां वो फैयाजी दिखाता है, वहां वो सखावत करता है, और जहां उसकी मसलहत नहीं रहती है उसकी सारी सकाफत, सारी सखावत, सारी दीनदारी और सारा ईमान धरा का धरा रह जाता है। हजरात, रिश्तेदारों के साथ हम क्या मामला कर रहे हैं ये हम जानते हैं, इसी तरीके से हम अपने पड़ोसियों के साथ क्या मामला कर रहे हैं वो भी हमें मालूम है। हम रिश्तेदारों के भी हुकूक से नाआशना हैं और पड़ोसियों के भी हुकूक से हम पहलू तही कर रहे हैं। लेकिन जान लीजिए कि इस्लाम ने इसको बहुत बुरा तस्वुर दिया है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शख्स पड़ोसी का हक नहीं अदा करता है उसके ईमान में नक्स की अलामत करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा आमना बी मन बात शबाना व जारहु जाए, कि वो शख्स मुझ पर ईमान नहीं लाया जिसने आसूदा होकर के रात गुजारी इस हाल में कि उसका पड़ोसी भूखा हो। तो कितना बड़ा हक है आप जान लीजिए, एक पड़ोसी का और एक रिश्तेदार का, जो हम लोग आए दिन इन हुकूक की पामाली कर रहे हैं। और ये मत समझिए कि अगर आप किसी गरीब को उसका हक दे रहे हैं, किसी पड़ोसी के साथ अच्छा मामला कर रहे हैं, किसी रिश्तेदार के साथ
अच्छा बर्ताव कर रहे हैं तो आप उस पर एहसान कर रहे हैं, नहीं, इसमें आपका फायदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर आप बंदों को की जरूरतों को पूरा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, और आपके अंदर जो बुराई है, जो अदावत है, जो बुग़्ज़ है, जो हसद है, जो कीना है, जो कपट है, दूसरे के खिलाफ उसको निकाल देगा और उसकी जगह पर लिल्लाही तक़वा, खौफ खुदा, खशियत इलाही भर देगा। और यही एक मोमिन का मकसूद है और यही हर मुस्लिम का हदफ है। इसी को पाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, और ये सिर्फ दुनिया ही में नहीं बल्कि क़यामत के दिन भी हमें इसका बेहतरीन बदला मिलने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन नफ़सा मोमिन कुर्बत मिन कुर्ब दुनिया नफ़सल्लाहु अन्हु कुर्बत मिन कुर्ब यौमिल क़ियामा व मन यस्सरा अला मुसिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा व मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा मन काना फी औनि अखीहि काना अल्लाहु फी औनिही औ कमा क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि क़यामत के दिन जब सूरज 1.5 नेज़े पे आ जाएगा, इंसान का ये दिमाग इस तरह से खोल रहा होगा जैसे चूल्हे पर रखी हुई हांडी खोलती है। बस नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर शख्स हैरानगी और परेशानगी में दौड़ रहा होगा। उस वक्त जब इंसान कोई घुटने भर पसीने में, कोई कमर भर पसीने में और कोई सर तापा पसीने में डूबा हुआ होगा, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करेगा? अगर आपने किसी इंसान के साथ, किसी मुसलमान के साथ भलाई की है, उसकी किसी पर परेशानी को, दुनियावी परेशानी को दूर किया है, तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी उस परेशानी को दूर करेगा। आपने अगर किसी तंग दस्त की मदद की है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन आपको उसका सिला देगा, और अगर आपने किसी मुसलमान के ऐब को छुपाया है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में भी और क़यामत के दिन भी आपके ऐब को छुपाएगा। बहुत बड़ी बात है। हम मुसलमान एक दूसरे मुसलमान के ऐब को इस तरीके से उछालते हैं और उसके खिलाफ ऐसे कलमात इस्तेमाल करते हैं, ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह की पनाह मुसलमान एक दूसरे मुसलमान के लिए इस तरह की सोच रखे, इतनी घटिया सोच रखे कि उसे कभी कभी गुमराह और जाल और मुज़िल बना दे कि दूसरा मुसलमान ना सिर्फ गुमराह है बल्कि गुमराह करने वाला है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कुरान में ईसाइयों का तस्करा करते हैं, नसारा का तस्करा करते हैं, तो सिर्फ कहते हैं जालिम, ये लोग भटके हुए हैं, गुमराह हैं, इन्हें हक का रास्ता नहीं मिला इसलिए गुमराह है। और जब फिरौन को, जो कि तागूत ज़माना था, उसकी नसीहत के लिए जब अपने नबियों को भेजते हैं तो कहते हैं इज़हबा इला फिरौन इन्नहु तग़ा फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यना लअल्लहु यतज़क्करा औ यख़शा। कि मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को तागूत ज़माना फिरौन के पास भेजा जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, लेकिन ये हुक्म नहीं होता कि जाकर के उससे ऐसी बात करें जिससे वो तैश में आ जाए, या ऐसी बात करें जिससे उसके जज्बात उठ खड़े हों, ऐसी बात करें जिससे उसको दिली तकलीफ पहुंचे, बल्कि यह हुक्म होता है फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यना, जाओ उससे नरम अंदाज से बात करो, अच्छे उसलूब से बात करो, लअल्लहु यख़शा, शायद कि वो डर जाए, और यतज़क्करा औ यख़शा, शायद कि वो नसीहत पकड़े और डर जाए। जब आप जाएंगे किसी को सुई चुभोने के लिए और उससे तवक्को करेंगे कि वो आपके साथ बहुत अच्छा मामला करेगा, तो हरगिज नहीं। दावत के मैदान में ये अमल गैर मकबूल है। अगर आप किसी को सही दीन की तरफ लाना चाहते हैं तो आपको अच्छे उसलूब अपनाने होंगे, अपने किरदार में भी जुलू पैदा करना होगा और अपने अल्फाज में भी मिठास और हलावत पैदा करनी होगी, वरना हम अपने हदफ को नहीं पा सकते हैं। हजरात, ये जो भाईचारा है और जो अखुवत और मोहब्बत है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन जिसके अंदर 3 चीजें हों, ये 3 चीजें हों, वो गोया कि ईमान की हलावत पा लेता है। क्या क्या चीजें हैं? यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उसके अंदर तमाम चीजों से ज्यादा हो, सबसे ज्यादा। युहिब्बुल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, कि आदमी दूसरे से अगर मोहब्बत करे तो सिर्फ वो अल्लाह की रजामंदी और खुशनुदी के लिए करे। हजरत अबू इदरीस खौलानी कहते हैं कि मैंने हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा
कि मैं आपसे मोहब्बत कर अल्लाह की खातिर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। हजरत मुआज बिन जबल कह रहे हैं क्या हकीकत में आप मुझसे अल्लाह की रजा के लिए खुशनुदी के लिए मोहब्बत करते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। कहा आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क़ाल अल्लाह ताला वजबत मोहब्बती लिलमुतहब्बिन फीहा वलमुतजालिसीन फीहा वलमुतजाविरीन फीहा वलमुतबाज़िलीन फीहा। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब हो गई जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जो मेरी खातिर एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं, जो मेरी खातिर एक दूसरे की जियारत करते हैं, जो मेरी खातिर एक दूसरे पर खर्च करते हैं। हजरात सिर्फ इसी पर बस नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहब्बुन नास इलल्लाह अनफअकुम व अहब्बुल आमाल इलल्लाह सुरूरुन तुदखिलहु अला मुस्लिम, कि तुम लोगों में सबसे बेहतर अल्लाह के नजदीक वो है जो सबसे ज्यादा लोगों को नफा पहुंचाने वाला हो, लोगों के काम आने वाला हो, और आमाल में सबसे महबूब अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो अमल है, वो खुशी है जो आप किसी मुस्लिम के दिल में पहुंचाएं, या उसकी परेशानी को दूर करें, या उसकी तरफ से कर्ज अदा कर दें, या उसको खाना खिला करके उसकी भूख को मिटा दें। और अगर कोई मुस्लिम किसी मुस्लिम के साथ उसके काम के लिए जाता है तो वो मस्जिद में 1 महीना इत्तिकाफ करने से ज्यादा बेहतर है। और इसी हदीस में अल्लाह के रसूल ये कहते हैं वमन मशा माफिहिल मुस्लिम फी हाजतिही हत्ता युस्बितहा लहू अस्बत अल्लाह ताला कदमहू यौमा तजिल्लुल अक़दाम, कि जो शख्स किसी मुसलमान के काम के लिए उसके साथ जाए और वो काम उसके जरिए से उसका पूरा हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन उसके कदम को साबित रखेगा। उस दिन जब सारे लोगों के कदम फिसल जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि क़यामत की हौलनाकी बहुत ही जबरदस्त हौलनाक चीज है, जिसकी मंजर कशी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तरह की है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम शानुन यौमइज़िन युग़नी। उस दिन खौफ और हरास का आलम यह होगा कि आदमी हर एक से छुप छुप के चल रहा होगा कि कहीं किसी की नजर मेरे ऊपर ना पड़ जाए और मुझसे कुछ मांग ले। यहाँ तक कि अपने भाई से किनारा कशी अख्तियार कर रहा होगा, अपने बाप से अपनी माँ से छुप रहा होगा, अपने बेटों से अपनी औलाद से भी छुप छुप के चलता होगा, बच बच के चलता होगा, इसलिए कि हर आदमी अपनी ही परेशानी में डूबा हुआ होगा। तो उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर आप दूसरे के लिए नाफे हैं, दूसरे के लिए मुफीद हैं, दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दिन आपकी मदद करेगा। ऐसे हदीस में और है कि जो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह ताला का क़यामत के दिन फरमाएगा यक़ूलुल्लाहु ताला यौमल क़ियामा अयनल मुतहब्बून बिजलाली अल-यौम उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली, कि मेरी खातिर मेरी रजा की खातिर मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं? आज के दिन मैं उनको अपने साए में रखूंगा जब कोई और साया मेरे अलावा नहीं है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि इस समाज में अमन व अमान कायम हो, खुशगवार माहौल हो, खुशहाली की फिजा कायम हो, तो आप अल्लाह और रसूल के अहकाम पर अमल करते हुए एक दूसरे से उल्फत और मोहब्बत कीजिए, भाईचारगी को, हमदर्दी को, गमगुसारी को अपनी सोसाइटी में अपने इर्द गिर्द आम कीजिए। और इंशाअल्लाहुल अजीज अगर वाकई हम सच्चे दिल से एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, अपने अंदर के बुग़्ज़ और कीने और हसद को हमने निकाल दिया तो इंशाअल्लाहुल अजीज वो फिजा कायम होगी जिसका हम ख्वाब देखते हैं और जो फिजा अल्लाह और रसूल को मतलूब है। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलकुम बर्रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल बशर व सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله